Anyways, let's move on to the topics which we need to discuss through this semester. We have, I think we have already shared the documents regarding the syllabus and all, and the corrected one also I have shared. I suppose you all must have gone through it. I'll be taking the second paper of the first semester, and that's called environmental studies. Okay, so in environmental studies we have, I think, different atmosphere, like different spheres of planet, like the hydrosphere, lithosphere, and atmosphere. And then we would move on to some ecosystems and ecology portion, where we would be studying the ecosystems, different types, and how do they interact, what are the energy flow systems, how do the food chains and food webs are maintained, and after that we would like focus on a few of the aspects of the national, the protected areas where the animals have been conserved and protected, the animals, plants, the different ways of conservation and protection. We would go through that also. We would touch that portion also. So, as I have already told in my class, you need to respond and you need to interact in my class. Though the people must have told you that given the class is going on, nobody would talk. But I want you all to talk in between, you all to interact with me whenever I ask something. It's not that I have asked something and you have kept on for the say, another 2 or 3 minutes. It wastes time. We have a limited 48 minutes of class, and in that also you just take so much time to log in and so much time to respond. How would I know that whether something is being perceived by you or not? You need to respond me, okay? So now tell me what you have heard about, what you have uh, known about the sphere, the different spheres. And the first one is the atmosphere. What do you understand by atmosphere? Anybody? See, again, no response. Why? So Yes, it please. is a layer surrounding the earth, Hmm. Layer of what? Layer of ice? layer of gas, Layer of gases? What gases? Any particular type of gases? Hmm. No idea. No idea. Nobody can tell me. mixture of gases. Mixture of gases. What is that? What gases? This is not something which we have not gone through. You haven't heard of. This is not something which is very new to you all. You all know it from since childhood. You have been studying this. And I'm asking the interaction in a generalized term. Like what is it exactly? What atmosphere can be defined as? You say it's a mixture of gases. It's a layer around the earth. Then I can come up with some other. जैसे कि आपने कह दिया कि एक लेयर है, तो कहाँ है लेयर? अर्थ के सरफेस पे है, सरफेस से दूर है, या कितनी दूर तक है? मिक्सचर ऑफ गैसेस का तो कौन से गैसेस हैं? राइट, तो क्या वो स्टिल है या फ्लोइंग है? तो फ्लोइंग है तो क्यों है? That we would see, but at least you should come up with the preliminary knowledge, preliminary information that you have about the atmosphere. और ऐसा नहीं है मैंने कोई नई चीज नहीं पूछी आपसे, आपको सबको मालूम है. आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था, याद है आप लोग को?
आप लोगों ने Yes, sir. एप्टीट्यूड टेस्ट में मैंने कहा था कि नेगेटिव मार्किंग है, फिर भी आप लोगों ने धड़ाधड़ नेगेटिव जो बनाया वो टिक किया है। माइनस में भी स्कोर गया है कुछ लोगों का, देखा होगा आप लोगों ने। स्कोर दिखता है आप लोगों को? स्कोर देखा आप लोगों ने? Yes, sir. देखा कुछ लोगों का माइनस स्कोर है। बोलिए। कुछ कह रहे थे, बोलिए। Again the silence. See, this is the last time I'm like telling you all that you need to interact. Even if you do not know, it says don't know, no idea, whatever. Just don't keep mum. Okay, शांत बैठना नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोग का। नहीं तो फिर मैं आऊंगा, आप लोग से मेरे को मतलब नहीं रहेगा, मैं अपना क्लास में बड़बड़ करके चला जाऊंगा, and I would not be like interacting at all. There are many things which you all will like, मेरी तरफ से आप लोगों को कुछ मिलेगा, कुछ चीजें आप लोगों की तरफ से भी मुझे आएंगी. It's a mutual process of understanding and learning, and इसको make it healthy and enjoyable. ऐसा नहीं कि बस बैठे हैं, एक मैं बोलता चला जा रहा हूँ, आप लोग रेस्पॉन्ड ही नहीं करते. मैं छोटी छोटी चीजें पूछूं, and one more thing, ज्यादा से ज्यादा आप गलत बोलेंगे क्लास में और कुछ नहीं होगा. और सबके माइक म्यूट है, कोई हंसता होगा तो समझ में भी नहीं आएगा, तो नो नीड टू वरी ऑल्सो कि आपने गलत बोल दिया, कोई और हंसेगा. कोई हंसेगा तो आपको नजर नहीं आता है और ना ही आपको सुनाई पड़ता है, तो डू नॉट टेक लोड ऑफ दैट. Just keep saying something and make it a habit of interacting. This is the biggest flaw in students. I tell you, they don't interact. Those who interact, they go ahead. Those who do not, they might get the degree, but they are not, successful in their life. ये बात तो समझिए, इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, और ये सीखने का प्रोसेस है, अभी शुरुआत है. अभी गलत ही सही आप बोलेंगे आप लोग, ऐसा नहीं कि भाई चुप बैठा हुआ है, चुप बैठे हैं, मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ, आप लोग शांत बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूँ उसको भी जवाब नहीं देते आप लोग. इफ यू डू नॉट नो, से सर नो आइडिया, आई डू नॉट नो. समबडी से इट. सबको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ने बोल दिया समझ में आ गया, जिसको मालूम है वो तो बोल सकता है, सर आई वांट टू से समथिंग. एंड आप लोग ना ये जो क्लास ज्वाइन करते हो छोड़ते हो, ज्वाइन करते हो छोड़ते हो ना, ये सब मेंटेन करता है, ये ऐप मेंटेन करता है. कितनी देर कितने मिनट बैठे हो उसका भी काउंट रखता है. नॉट ओनली मी, आपका भी रखता है. प्लीज इंटरेक्ट. ये कोई तरीका नहीं है मतलब क्लास करने का. होती होंगी अभी तक आपकी क्लासेस ऐसे ही, बट कम आउट ऑफ इट, लर्न समथिंग न्यू, लर्न समथिंग व्हिच इज लाइक हेल्पफुल फॉर योर होल लाइफ. ऐसी चीजों के साथ बहाव में बहने की जरूरत नहीं, चीजें सीखिए. अभी प्रेजेंटेशंस होंगे आप लोगों के, प्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे, फिर आप क्वेश्चंस पूछूंगा, फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप कैसे जवाब दोगे उनको. Try understanding, try improving yourself. It's a chance to improve yourself academically and personally as well. ठीक है. जैसे कि एक ने किसने ट्राई किया, हमने बोला कि it's a layer around the earth which is a mixture of gases. Okay, understood. That's a very which we have learned through our school कि भाई हाँ, एक लेयर है अर्थ के चारों तरफ जो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है. और गैसेस क्या है, ये सभी तक गैसेस आई कहां से. तो यदि आप जानना चाहेंगे इस चीज के बारे में, इफ यू वांट टू नो कि हाउ दीस गैसेस आर कम अप इन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर्मिंग ए लेयर व्हिच वी कॉल एटमॉस्फेयर. डू यू हैव एनी आइडिया, एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज एटमॉस मींस? Atmosphere, sphere. Sphere means the gola, the circle, the three dimension of a circle. But what is atmos? There are three different spheres we call Surrounding. Surrounding. Okay. Any different opinion? Atmos means what? तो हिंदी we call वातावरण. In Hindi we call वातावरण, right? But जैसे कि हम कहते हैं ना कि इसको हिंदी में भी टर्म्स हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का. जैसे लिथोस्फीयर, लिथोस मतलब क्या है?
आपने जैसे हिंदी में बोला वातावरण, वातावरण मतलब तो एनवायरनमेंट हो गया शायद, नहीं पर्यावरण, पर्यावरण एनवायरनमेंट, वातावरण मीन्स व्हाट, वेदर, क्लाइमेट। किसी को भी नहीं मालूम है एटमॉस का मतलब क्या है। एटमॉस का मतलब होता है वेपर। देखिए जब तक हमें आज हर चीज मालूम है हमें, उसमें से भी हम लोग अब मतलब हम हमें ज्ञात नहीं है, बहुतों को हमें मालूम नहीं क्या क्या चीजें, लेकिन ये सब चीजें हुई है, इसके बारे में लोगों ने पढ़ा है, लिखा है और लोगों को जग जाहिर किया है। देखा जाए तो ये गैसेस आई कहाँ से? हम तो बहुत सारे ग्रहों के बारे में जानते हैं जहाँ पे गैसेस ही नहीं है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है बोलते हैं। पहले जब हम देखते थे कि जो भी इवेपोरेशन जो होता वो तो हमें दिखता था, अब इवेपोरेट हो रहा वो कहा जाता था हवा में ऊपर चला जाता था, तो वो जो वो उसका स्फीयर है। सब लोग बोलते थे कि वेपर्स चले गए, वो हमारे चारों तरफ रहते हैं और वही एटमॉस्फेयर है। यानी कि एटमॉस मतलब वेपर होता है, वेपर का एक स्फीयर जो अर्थ की तरफ चारों तरफ है। लिथोस मतलब होता है रॉक, पत्थर, जिसको हम बोलते हैं लिथोस्फीयर, मतलब सरफेस, सॉलिड सरफेस जो है अर्थ का वो। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस मतलब भाई आपको मालूम है पानी। इट्स लाइक दैट। तो जैसे कि आपने ट्राई किया, दैट वाज अ वेरी लेमन आंसर कि इट्स अ लेयर अराउंड द सरफेस which is a mixture of gases. But have you ever tried imagining or trying to understand like how come these gases have come on earth? How? Can anybody guess? कैसे वेग सा गेस हो, सही हो या गलत हो चलेगा, लेकिन कैसा कोई गेस कर सकता है कि गैसेस आई कहां से? कहीं बाहर से आ गई या अर्थ में से निकल के बाहर जमा हो गई? जब वेपर अर्थ से उड़ता है, मतलब आई मीन उड़ता है ऊपर तरफ चला जाता है, तो गैस हमारे चारों तरफ रुकी क्यों है, चली क्यों नहीं गई उड़ के कहीं? तो भी कभी सोचा इस बारे में? कोई गेस कि गैसेस आई कहां से हमारे पास? इसमें नो से सर। कितने बच्चों को, अच्छा, इसमें से कितने बच्चों को इंटरेस्ट है जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं इसको, एक होता है ज्योतिष शास्त्र, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स के बारे में या फिर यूनिवर्स या फिर सोलर सिस्टम, इसके बारे में कितनों को इंटरेस्ट है इसमें से? लाइक ऑफ कोर्स हम जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बट वी माइट हैव थोड़ा सा इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसा कोई है? यस ओके, तो कुछ आपने बिग बैंग के बारे में कभी सुना है? यस सर, इवोल्यूशन। हाँ, हमने प्लानिटरी इवोल्यूशन में हमने सुना है कि यूनिवर्स का इवोल्यूशन पूरा कॉम्पैक्ट था, वो बिग बैंग, बहुत बड़ा बैंग हुआ, यानी एक्सप्लोजन हुआ, जिससे कि उसके टुकड़े हुए बहुत सारे, वही टुकड़ों से ढेर सारे सोलर सिस्टम या फिर कहना चाहिए यूनिवर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स या फिर सेलेस्टियल बॉडीज जो है उनका फॉर्मेशन हुआ। बट एक्चुअली जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा भी जब सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ होगा, हमारे भी जब प्लैनेट्स अलग हुए होंगे सन से, तो जब एक्सप्लोजन के बाद, तो हो सकता है, मतलब हो सकता नहीं, इट वाज नोन कि भाई इट वाज प्रूवन कि हमारा भी एक हॉट क्या बोलना चाहिए, इट वाज ए क्या कहते हैं हम उसको, आग का गोला था, फिर ठंडा हुआ। अब ठंडा हुआ मतलब क्या हुआ, क्या रिएक्शंस हो गए कूल डाउन होते समय? जब हॉट, जब ये एक बॉल था, हॉट बॉल था, तो उस आग के गोले को जब ठंडा होने की प्रोसेस में उसको समय लगा, उसमें बहुत सारे जो केमिकल कंपोनेंट्स थे अर्थ के ऊपर, उनके थ्रू हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हमें नजर आने लगे या मिलने लगे। अब कुछ गैशियस फॉर्म में थे, जैसे कि हमको मालूम है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, CO2 तो फॉर्म होता है कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में बनने के बाद, ऐसे दूसरे गैसेस हैं। तो सभी गैसेस कैसे जमा हो रहे हैं? ये गैसेस किसी भी प्लैनेट के ऊपर आने का भी रीजन है, वो कभी थोड़ा सा, जिसको भी एस्ट्रोनॉमी में थोड़ी बहुत इंटरेस्ट है तो वो पढ़ सकता है कि एक स्टार जब, जैसे कि हमारा सन है, सन के ऊपर आपको मालूम है कि एक दो रिएक्शंस आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री या फिजिक्स में, कहीं फिशन और फ्यूजन।
फिशन मतलब किसी बड़े मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में टूटना, और फ्यूजन मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना। तो हम बोलते हैं कि हम सोलर सिस्टम में बाकी हर जगह जब भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो कोई भी चीज टूटती है छोटे कंपोनेंट्स में और एनर्जी रिलीज करती है, लेकिन फ्यूजन में उल्टा होता है, राइट? दो अलग अलग कंपोनेंट्स मिलते हैं, एक नया कंपाउंड बड़ा कंपाउंड बनाते हैं या बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं, उसमें भी एनर्जी रिलीज होती है फ्यूजन में, ठीक है? तो कहते हैं कि सोलर मतलब आई मीन सन के ऊपर ढेर सारा फ्यूजन रिएक्शंस होते रहते हैं। अब सोचिए कि ये इट टेक्स crore of years या फिर millions of years, billions of years to get these elements formed on the sun. सन के ऊपर जैसे हम बोलते हैं वहां पे हीलियम कंटेंट ज्यादा है ना? तो यानी हाइड्रोजन, हीलियम, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल आप देखोगे केमिकल एलिमेंट्स के, तो आपको मालूम है कि एक एटम वाला एक इलेक्ट्रॉन वाला, दो इलेक्ट्रॉन वाले, तीन वाले, चार वाले, पांच वाले, ऐसा लाइंस हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर उसका एटॉमिक नंबर उतना है। तो उसके बेसिस पे हर एक, अभी हीलियम दिखता है बोलते हैं हम सन के ऊपर, तो हीलियम क्या नंबर पे आता है? थर्ड नंबर पे आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? किसी को मालूम है? हाइड्रोजन में एक है एटॉमिक नंबर, दो वाला कौन है? हीलियम तीन है, हीलियम दो है, तीन क्या है? बेरिलियम है, लिथियम लिथियम। लिथियम है क्या? यस सर। ओके, एनीवेज मुझे भी हाँ, फिलहाल सर। याद नहीं आ रहे होते। अच्छा, तो यानी कि 1 एटॉमिक नंबर्स, 2 एटॉमिक नंबर, 3 एटॉमिक नंबर वाले से एलिमेंट्स जो है, ये एलिमेंट्स धीरे धीरे फ्यूजन के थ्रू बनते हैं, फ्यूजन के थ्रू बनते हैं, बट ऐसा नहीं कि तुरंत फ्यूजन हो गया और बन गया। तो सपोज करिए कि जिस प्रकार से हमारे अर्थ के ऊपर, हमारा अर्थ भी किसी एक स्टार का टुकड़ा रहा होगा, क्योंकि हर स्टार में जब फ्यूजन होता है उसमें कुछ सालों तक उसमें फ्यूजन क्रिया चलती रहेगी, कुछ करोड़ साल, मिलियन ईयर्स तक, तो वो एक एक एलिमेंट उसमें बनने लगते हैं, है ना? कि एक एटॉमिक नंबर से दो एटॉमिक नंबर वाले, तीन एटॉमिक नंबर वाले, चार एटॉमिक नंबर वाले, ऐसे धीरे 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 बनते हैं। तो देखिए कि वैसे देखा जाए तो हमारे अर्थ के ऊपर सभी एलिमेंट्स जाने जा चुके क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स हैं। सभी एलिमेंट्स के नाम कैसे आए? क्योंकि हमारे अर्थ में पाए जाते हैं, तभी तो नाम आए ना, हमने कुछ डिराइव नहीं किया कोई, तो बस वो लैंथेनाइट और एंथेनाइट सीरीज जो है उसमें से कुछ और है जो बीच के नहीं मालूम थे हमें, वो फिर बाद में पता चले, राइट? तो ये जो एलिमेंट्स है, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर इतने सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है, मतलब अर्थ किसी एक ऐसे स्टार का टुकड़ा था जहां पे ये सब एलिमेंट्स बन चुके थे because of the fusion on that particular star, यानी हम सन के पार्ट नहीं हैं। अब एक नई चीज पता लग गई आपको आज, हम सन से अलग होके नहीं बने हैं, हम किसी और स्टार के टुकड़े थे जिसमें इतना फ्यूजन हुआ है कि उसमें पूरे एलिमेंट्स आ चुके थे, उसके बाद वो एक्सप्लोड हुआ, उसमें से एक टुकड़ा सन बना, उसमें से फिर बाकी जो टुकड़े हमारे 8 या 9 प्लैनेट जो भी हैं वो बने, राइट? ये दर्शाता है कि when we have all these elements present on our solar system, on our planet, that means we are from that part of a star which has exploded after a long duration fusion reactions and getting these elements deposited on its core. जब ये टुकड़े जब हमारे पास, हमारा अर्थ जब बना हुआ तो ये भी एक आग का गोला था, इसमें सभी एलिमेंट्स थे लेकिन हम जानते नहीं थे, राइट? तो अब जब ठंडा होना शुरू हुआ, ठंडा होते होते क्या होने लगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ वहाँ एस्केप होना शुरू हो गए, लेकिन वो एस्केप होकर स्पेस में क्यों नहीं चले गए? क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल पुल है, हर प्लैनेट के पास ग्रेविटेशनल पुल है जो हमारे सोलर सिस्टम से या फिर सन से कंट्रोल्ड है। सन सभी को पुल किए हुए है, मतलब सन की ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारी भी अपनी अपनी है जिससे हम अपने मून्स को कंट्रोल करते हैं। मून्स तो ये बोल रहे हैं क्योंकि जब हम टुकड़े हुए थे वो टुकड़ों को
संभालने के लिए एक दूसरे से जो पुल था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसके थ्रू ये एक सिस्टम, सोलर सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो एक फॉर्म हो गया एंड इट हैज कम इनटू एन इक्विलिब्रियम पोजीशन कि वो कुछ एक दूसरे से दूर ना जाते हुए या फिर जाते जाते हुए रह गए, संभल गए या स्लो डाउन हो गए। और ये सब चीजें अभी भी वो एक्सप्लोजन के मोशन में ही है, इसलिए हम रिवॉल्व या यहाँ से दूर जाना या बोलते हैं कि हम एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, ये सब प्रोसेसेस को जस्टिफाई किया जाता है। बट ये बहुत ज्यादा फिजिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। बट लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं, जो गैसेस हैं, वो कूल डाउन प्रोसेस के दौरान वो अर्थ से निकलते रह गए, लेकिन वो बहुत दूर नहीं जा पाए अर्थ से, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स उनको खींचे रखती है। एटमॉस्फेयर बनने का मेन रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो गैसेस एस्केप होती थी, जो भारी थी, वो सरफेस के नजदीक रह गई, जो हेवी गैसेस थी वो सरफेस से दूर चली गई। और यहाँ पे क्योंकि जब वो इन द कूलिंग प्रोसेस, यहाँ पे ढेर सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुआ करते थे, छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स होते थे अर्थ के ऊपर, उससे फिर नए टाइप के गैसेस बनने लगे, NO2 बनने लगा, CO2 बनने लगा, राइट, अमोनिया बनने लगा। अमोनिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, राइट, वैसे CO2 इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो ये कॉम्बिनेशंस बनने लगे बिकॉज ऑफ द conditions available on the planet at that time when it was going through the cooling process, right? तो ऐसे गैसेस फॉर्म हुए। तो देखा गया कि सबसे ज्यादा बहुतायत रूप में देखा जाए तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रिलीज हुआ है। देखा जाए तो पांचवें नंबर पे आता है नाइट्रोजन, 7वें नंबर पे आता है। 7 एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का। यस सर। हाँ और 8 जो है, हाँ 8 जो है ऑक्सीजन का है, राइट। तो वो यस सर। तो ये एक सोचिए कि यदि जिस स्टार के हम टुकड़े हैं, उस स्टार पे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बनना रहा फ्यूजन के थ्रू, it would have taken millions and billions of years। लेकिन सोचिए कि मतलब वो स्टार इतने बड़े थे, इतने साल जिए, इतने साल रहे, इतने साल फ्यूजन हुआ, तभी तो हमारे अर्थ के ऊपर सभी एलिमेंट्स मिलते हैं। सभी एलिमेंट्स मिलते हैं मतलब हम बहुत ही बड़े स्टार और बहुत ही लॉन्ग लिव्ड स्टार से के पार्ट है। एनीवेज, तो ये जो गैसेस बनने लगी थी फॉर्मेशंस में, कॉम्बिनेशंस में, तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होने के कारण और हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा अवेलेबल होने के कारण हाइड्रोजन नाइट्रोजन अमोनिया बनाने लगे, अमोनिया बनने लगा बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, कभी कभी टेम्परेचर कंडीशन, कभी कभी कूलिंग डाउन प्रोसेसेस के कारण, या कभी कभी वोल्केनिक इरप्शंस के कारण। तो ऑल दिस, कभी अब क्या होता है, अब हमारे पास पानी कहाँ से आया, वाटर कहाँ से आया, ये वही हाइड्रोजन है, वही ऑक्सीजन है, जो एक यदि बोलते हैं ना, ये दोनों मिलते कैसे हैं, पानी कैसे बनता है। बिकॉज आपने सुना होगा आर्क बोलते हैं आप लोग, इलेक्ट्रिक आर्क होता है। यदि हम दो टर्मिनल्स कितने नजदीक लाए कि उनके बीच में स्पार्क हो, तो वो स्पार्क बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करती है, जिसके कारण एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जोड़ सकते हैं या फिर अलग हो सकते हैं। तो वैसे आर्क्स होते थे हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि चार्जेस डेवलप हो जाया करते थे, क्योंकि यही हाइड्रोजन और यही जितने मॉलिक्यूल्स हैं इनके आयंस बनते थे, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर आयनिक फॉर्म में जाते थे, चार्ज डेवलप होता था, और दो अलग अलग डिफरेंट चार्ज डेवलप हुए, कहीं कम ज्यादा, उनके बीच स्पार्क्स होते थे। वो स्पार्क्स हेल्प करते हैं फिर H2 और O को मिलकर वाटर बनाने में। तो दैट वे इट वाज मतलब ये जब छोटी छोटी चीजें आप इनके बारे में सोचोगे तो इतना सारा पानी कहाँ से आया, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर कहाँ से क्रिएट हो गया। ये जस्ट एक दिन की बात नहीं है, इट टुक टाइम, इट टुक मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इयर्स। उसके बाद लाइफ शुरू हुई उसके बहुत दिनों बाद। लाइफ से मेरे ख्याल से 400 मिलियन साल पुराना ही, सॉरी ह्यूमन जो है 400 मिलियन पुराने हैं। उसके पहले देखा जाए तो कितना पुराना है ये, जुरासिक पार्क की वजह से 4000 बोलते हैं, 400 मिलियन ईयर्स की बात करते हैं, तो बिलियंस के 4 बिलियंस की बात करते हैं। तो लाइक दैट इट टुक टाइम एंड स्लोली हमारे इसके ऊपर वाटर भी क्रिएट हुआ, गैसेस भी क्रिएट हुए। और ये होता था जब स्टार जब एक्सप्लोड होता था, यूजुअली वो जैसे कि हम बोलते हैं प्लैनेट्स और स्टार्स पड़े, वैसे ही वाटर के भी क्लाउड्स यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, जिनको एक अलग टर्म है, तो वो भी यहाँ हमारे तो एक्सप्लोजन के थ्रू वो भी यहाँ पर छिन्न भिन्न हो जाते हैं। समटाइम्स दे गेट अटैच्ड टू सम ऑफ द ब्रोकन पोर्शंस ऑफ दैट स्टार, तो वो उस प्लैनेट के साथ में एसोसिएट हो जाते हैं।
बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूसली प्रेसिपिटेट होगा। लेकिन यदि उस प्लैनेट के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो प्रेसिपिटेट हुआ वाला वाटर वेपराइज होकर जब वापस जाएगा तो खींच के रखता है ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत दूर जाने देता नहीं उसको। बिकॉज ऑफ इट्स वेट वो अपने अपने अलग अलग लेयर पे सेटल हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं जितने भी हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, पोल्यूटेंट गैसेस जो है वो यूजुअली कॉम्बिनेशंस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब ना थोड़े से हेवी है, तो ये अर्थ के सरफेस के नजदीक रहते हैं, तो ये हमको ज्यादा हार्म करते हैं। यदि कोई पोल्यूटेंट ऐसा हो कि वो बहुत हल्का हो तो वो ऊपर चला जाएगा, तो इट वुड नॉट हार्म अस। इसलिए पोल्यूटेंट्स होते हैं यूजुअली सभी कॉम्बिनेशंस में कंपाउंड्स हैं, तो कंपाउंड्स यूजुअली हैवी होते हैं तो वो अर्थ के सरफेस के नजदीक ही रहते हैं। तो लाइकवाइज जो गैसेस हैं वो बनने लगे और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशन वो अर्थ से दूर नहीं जा पाए। तो देयर वाज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, या फिर एक एनवेलप, जैसे किसी बच्चे ने कहा था एनवेलप, या फिर लेयर ऑफ ग्लास। लेयर तो कैसे होता है कि ऐसे किसी के ऊपर रखा उसके ऊपर एक लेयर हो गया। अब ये हम एक 3 डायमेंशनल फिगर की बात कर रहे हैं जो हमारा अर्थ है, उसके चारों तरफ ये चीजें हुई है। एंड क्योंकि अर्थ घूमता भी था, इवन दैट क्रिएटेड समथिंग वी डिस्कस लेटर। तो जैसे ही ये जब गैस एस्केप होके तो आज के चारों तरफ ये जमा होने लगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, उसके साथ जमा होने लगे। ग्रेविटेशन नहीं रहा होता तो ये जो एस्केप हुए थे गैसेस वो कहीं तो भी चले जाते थे, कहीं तो भी दूसरी जगह सेटल हो जाते। जैसे मैंने बताया था ना कि जब वो एक्सप्लोड होता है तो वाटर के क्लाउड्स रहते हैं यहाँ वहाँ, उनको कुछ कहा जाता है, तो जो क्लाउड्स वैसे ही गैसेस चलेंगे कहीं तो भी जमा हो जाएंगे बिकॉज वो स्पेस में कोई चीज को जब किसी ने खींचा उसकी तरफ चले जाएंगे, या फिर कोई एक्सप्लोड हुआ तो शायद वो भी एक्सप्लोड हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, एक अच्छा ग्रेविटेशन हमारे पास होने का जो न्यूटन ने बता के चले गए ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, यदि उन्होंने बताया नहीं होता तो इतनी सारी चीजें ना जस्टिफाई नहीं हुई होती कि एटमॉस्फेयर कैसे बना, या फिर कोई भी चीज हम जमीन पे खड़े क्यों रहते हैं, हम उड़ते क्यों नहीं है, पेड़ जमीन में क्यों है, कोई चीज नीचे क्यों गिरती है, व्हाटएवर, ये सब चीजें वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू ही जस्टिफाई होती है। और एटमॉस्फेयर क्रिएशन में भी जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स का एक मेजर रोल है, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई है, कभी पढ़ने की कोशिश करिए इन सब के बारे में, मजा आता है। बल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना पढ़ोगे उतना कम है, जितना यू गो इन डेप्थ खत्म ही नहीं होती है ना। तो इस सब चीजों के बारे में जानिए, पढ़िए, अच्छी चीजें हैं। समटाइम्स जिसको एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट है उसके लिए और मजा आएगा, और जिसको नहीं भी है तो कम से कम हमारे छोटे बच्चों को या फिर थोड़े दूसरों को जब आप बताओगे अर्थ के बारे में तो जेन्युइनली, लॉजिकली और ऑथेंटिक तरीके से बता पाओगे, राइट। तो दैट वे गैसेस क्रिएट हुई और चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ वो जमा होने लगे, जो हल्के थे दूर चले गए, और उसमें देखा गया कि वो जो ऑक्सीजन जो है वो एक लेयर पे जाके, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वो जमा होने लगा। लेकिन देखा ये गया कि वो जो आर्क की बात किया था, चार्जेस के डिफरेंसेस का जब वो स्पार्क होते हैं, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं, जो नेचुरल जो आर्क क्रिएट होते हैं चार्जेस के बीच में, दो इलेक्ट्रोड ऐसे रखे नजदीक नजदीक लाए, एक ऐसे एक डिस्टेंस पे वो स्पार्क करेगा डिपेंडिंग अपॉन द करंट दैट इज फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रोड्स। तो वैसे ही चार्जेस के कारण ये जो होता है, जो आर्क क्रिएट होता है नेचर में, हम उसको बोलते हैं लाइटनिंग बोलते हैं ना, बिजली का चमकना। तो दैट इज नथिंग बट द स्पार्क बिटवीन दोस टू डिफरेंट अपोजिटली चार्ज एंटिटीज के बीच में वो कांटेक्ट इतना नजदीक आता है कि वो स्पार्क होता है, दैट इज लाइटनिंग। तो लाइटनिंग हुआ करती थी बहुत जगह, और कंडीशन तो अपनी फेवरेबल थी ही नहीं, गर्म ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा था, कभी भी इरप्शंस होते थे, कभी भी कुछ भी चीज यहाँ से वहाँ सरक जाती थी, है ना, अर्थक्वेक्स हुआ करते थे उस समय। तो ये सब होते होते अर्थक्वेक तो बहुत लेटेस्ट स्टेज की बात है, शुरुआत में सिर्फ इरप्शंस ही हुआ करते थे, वोल्केनिक इरप्शंस ही बहुत ज्यादा थे, जिससे बहुत से कंबाइंड गैसेस निकलती थी, अमोनिया निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना, ऐश निकलता था, है ना, राइट। ये तो बहुत सारी चीजें थी। तो बर्निंग को समझते कार्बन जमा हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते कार्बन डाइऑक्साइड बनाते थे, तो लाइकवाइज कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनने लगा था। लाइक दैट कॉम्बिनेशन ऑफ gases बनने शुरू हो गए because of the unfavorable condition that was prevalent on the earth at that time when it was cooling down. अब ये जैसे मैंने बताया कि जब आर्क्स क्रिएट होते थे, आर्क मतलब वो लाइटनिंग जब क्रिएट होती थी
तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन हमेशा O जैसा नहीं रहता, वो हमेशा O2 में रहता है, O2 के फॉर्मेट में, राइट। तो वो क्या होगा कि O नहीं रहने के कारण क्या होता है कि जब एनर्जी बहुत ज्यादा मिल रही है तो देयर इज अ चांस कि वो ब्रेकअप हो जाए, वो O में चला जाए, O2 O में हो जाए, लेकिन वो अनस्टेबल है। हम सिंगल O को क्या बोलते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन फॉर्म होता है वो फट से किसी को पकड़ने की कोशिश करेगा, मान लीजिए उसके पास दूसरा O2 अवेलेबल है तो उससे बाइंड कर जाएगा, तो वो O3 बना लेगा, उसको हम बोलते हैं ओजोन। तो लाइकवाइज एट अ पर्टिकुलर हाइट ऑफ अर्थ सरफेस, वो जो गैसेस, ऑक्सीजन गैसेस जो अवेलेबल थे, वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल या फ्रीक्वेंट लाइटनिंग प्रोसेसेस, एनर्जी के कारण वो ओजोन मॉलिक्यूल बनाने लगे जो थोड़ा स्टेबल है, तो वो एक लेयर बनाने लगा, एंड दैट लेयर वाज beneficiary for us because that used to protect the entry of the ultraviolet rays को एंट्री से रोकता था, but it took time। ये ऐसे नहीं बन गया, एक दिन में नहीं बन गया। लेकिन आप जैसे बोलते हैं ना, एक बहुत ही कंसेप्ट है जो बहुत हम सबको डराते रहते हैं हमेशा, कि ओजोन लेयर में छेद हो गया, बहुत उसका होल बहुत बड़ा हो गया, अब यूवी रेज बहुत सारी अंदर आ जाएंगी और ढेर सारे लोगों को कैंसर हो जाएगा। ये हमें डराते रहते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हमको डराते रहते हैं, बट हमने केयर जरूर करना चाहिए ऑफ कोर्स, वो क्योंकि वो ऐसा इतनी पतली सी लेयर नहीं है ओजोन की, 5 से 15 50 किलोमीटर तक का रेंज में उसकी विड्थ है, तो वो उसको खराब होना जरूर हम खराब कर रहे हैं, क्योंकि CFCs जो हैं हमारे पोल्यूटेंट्स हैं, तो दूसरे गैसेस जो हैं वो यूजुअली ओजोन को खराब करते हैं। बट गड्ढे हो जाना, बिकॉज देखो कोई चीज स्टेबल नहीं है ना। सपोज करिए एक जैसे कि मैंने एक छत बांध रही है, एक प्लास्टिक की छत बांध दी, तो वो स्टेबल है, राइट, उसमें कहीं भी छेद कर सकते हैं, लेकिन कैसे कि ये गैशियस है, सोचिए गैशियस स्टेट, हाँ बोलिए, गैशियस स्टेट जो है ना वो स्टेबल है नहीं किसी जगह, अभी यहाँ पे है मॉलिक्यूल्स, अभी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स चले गए, एंड दैट टू, एक तो ग्रेविटेशन, दूसरा एक और चीज क्या थी, हमारी अर्थ कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करती रहती है, रिवॉल्व एज वेल एज रोटेट। आप शायद दोनों को फर्क को समझते होंगे, रिवॉल्व और रोटेट का मतलब, रोटेट अपने ही एक्सिस पे घूमना, रिवॉल्व किसी बाहरी एक्सिस पे घूमना। तो जो रिवॉल्व करती है हमारी अर्थ सन के चारों तरफ, सन एज एन एक्सिस, और रोटेट करती है अर्थ अपने ही जगह नॉर्थ एंड साउथ के एक्सिस पे, राइट। तो ये जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है, ये भी इट आल्सो क्रिएट सम इफेक्ट्स। हाँ, किसी कुछ कहना है? तो ये जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन जो है वो भी इफेक्ट लाते हैं इस एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस को, यानी कि वो एक ही जगह बिकॉज ऑफ रोटेशन हो सकता है कि वो जो लेयर है ओजोन का वो कंटिन्यूसली रिप्लेस होता रहे, हमारे ऊपर का जो ओजोन लेयर होगा वो शायद कंटिन्यूसली रिप्लेस होता चलता है बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड एज वेल एज रिवॉल्यूशन। और अर्थ के रोटेशन के कारण ही ये जब गैसेस मूव करती हैं तो उसी को हम बोलते हैं एयर फ्लोइंग एयर, विंड जिसको कहते हैं। जब एयर फ्लो करती है तो हम उसको विंड कहते हैं, राइट। और हर वो चीज जो फ्लो करती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, एंड हर वो चीज जो फ्लो, ये सब सुना है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. तो हर वो चीज, तो इसका मतलब है कि गैसेस को हम फ्लूइड बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि Yes, गैसेस sir. फ्लो करती हैं, गैसेस फ्लो करती हैं। तो इसीलिए अब हम देखो, अब जैसे आपने कहा था लेयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट। तो अभी हम बोलेंगे कि ये गैसेस तो हैं, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस तो सही है, कंपोजिशन सही है, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज राइट, एंड सिर्फ लेयर ना होकर के ये एक प्रकार के पूरे स्फीयर को एनवलप करता है, राइट। तो इट्स एनवलप around the earth, the mixture of gases, the envelope of mixture of gases around the earth, but कैसे, mixture of gases around the earth और जो फ्लो कर सकता है ना, तो fluidy envelope of mixture of gases, right, fluidy envelope of mixture of gases around the planet
इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एक और चीज छूट रही है, fluidy envelope of mixture of gases around the earth under its gravitational force is called atmosphere। ये हम लोगों का आज डिराइव किया हुआ डेफिनेशन हमारी क्लास में सेमेस्टर 1 डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज सेमेस्टर 1 के बच्चे जो इस साल 21 में एडमिट हुए हैं, उन्होंने आज मेरे साथ डिस्कस करके ये डिराइव किया, ये डिफाइन किया कि एटमॉस्फेयर इज अ फ्लूइडी एनवेलप अराउंड द अर्थ। इट्स अ फ्लूइडी मिक्सचर ऑफ गैसेस, या फिर इट्स अ फ्लूइडी एनवेलप ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स अराउंड द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। राइट? तो एटमॉस्फेयर को ढेर सारे डेफिनेशंस मिलेंगे आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से, बट ये जो डेफिनेशन है ये हमारी डेफिनेशन है, आपकी और हमारी। राइट? तो किसी को समझाना तो ऐसा समझाना ताकि कोई क्वेश्चन उठा ना सके। हमारे डेफिनेशंस आर दोज स्टेटमेंट्स ऑन व्हिच इट जस्टिफाइज द टर्म कंप्लीटली, वो उस टर्म को कंप्लीटली जस्टिफाई करता हो। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारे चारों तरफ है, सराउंडिंग बोल दिए, लेकिन हमने बोल दिया उसको एनवेलप कवर है ना, तो यानी एक फ्लूइड एनवेलप जो फ्लो करता रहता है, फ्लूइडी एनवेलप अराउंड द अर्थ व्हिच इज अ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बट वो दूर क्यों नहीं चली जाती है? बिकॉज इट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये है हमारा एटमॉस्फेयर। हम ऐसे ही कुछ और जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी समय हो गया, आपको मेरे ख्याल से प्रोग्राम भी है आप लोगों का कुछ, तो भी 1 बजे नेक्स्ट क्लब का। राइट? तो दैट्स ऑल एंड कीप इंटरेक्टिंग, बातें करिए। मैंने आपको रोका नहीं है कि क्लास में बात नहीं करेंगे, आप लोग प्लीज बात करिए। बात करने से हमें खुशी होती है और बात करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमें सिर्फ खुशी मिलती है लेकिन कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। तो गलत भी बोलोगे चलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा गलत बोलने पे लोग हंसते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में तो कम से कम हंसने का ऑप्शन है नहीं, सब म्यूट पे रहते हैं और ना ही किसी का चेहरा दिखता है। सिर्फ एक ही बंदा जिसका चेहरा दिख रहा है वो मैं हूँ आपके सामने। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब किसी से बात करनी चाहिए तो वो अपना कैमरा ऑन करे, ताकि मैंने कहा था कि हम आप लोग को पहचानेंगे कैसे? सिर्फ नाम से जानते हैं, वो भी नाम भी मालूम नहीं कौन कौन है।